Today, we are going to discuss the important aspect of the disease. So many people from India as well as abroad, especially parents, asked me and requested me to discuss about the disease. Commonly known as this disease is autism. Autism. Me and Dr. Gupta with me, Hello. we'll discuss the treatment part homeopathically. How can we can cure the disease? We'll discuss. But before that, I am so very happy to announce you to make it more authentic. One great counselor of Kolkata, Mrs. Vaishiki Bhattacharya. She is MA PGDM in Psychology Counseling and faculty of IGNOU is with us. First of all, let us hear from Mrs. Bhattacharya regarding the autism and how we can diagnose autism and what to do regarding the autism. Second part, we doctors will discuss regarding how we treat, how we can help the people through homeopathic treatment autism. Now, so let us hear Mrs. Vaishaki Bhattacharya. Good evening, friends. Sometimes people used to ask what is autism or autistic disorder. Autistic disorder basically an umbrella term. Within this umbrella term, Asperger, Rett, autism and pervasive developmental disorder not otherwise specified. All these are within this umbrella. Autistic disorder or autism basically a disorder where it is a pervasive and it is a brain developmental disorder. या साधा सीधा तरीके से बोला जाए तो ये एक ब्रेन की डेवलपमेंट के कारण, डेवलपमेंट कम होने के कारण ये डिसऑर्डर होते हैं और ये देखा जाता है एपिडेमियोलॉजिकली कि 250 बच्चे के अंदर एक बच्चा ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में आते हैं. Brain developmental disorder means there is an brain developmental disability. It affects communication, social interaction, cognition and behavior. So what are these basically? Basically ये बच्चे कभी कभी कम्युनिकेशन करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं. सोशल इंटरेक्शन ये लोग कर नहीं पाते हैं. सोशल इमोशन ये लोग समझ नहीं पाते हैं. कॉग्निशन यानी कि नॉलेज के डोमेन में थोड़ा सा कम हो जाता है और कुछ बिहेवियरल ऐसे सिम्टम्स दिखाते हैं जो ये इस टाइप के ऑटिज्म के अंदर बहुत ही कॉमन है और ये भी कहा जाता है दीज आर ऑल डिटरमाइनिंग थिंग जिसके द्वारा हमको समझ में आता है कि ये बच्चा ऑटिज्म के अंदर है. नाउ signs and symptoms. What signs and symptoms are basically हम लोग देखते हैं. अगर बच्चे में ऑटिज्म डिसऑर्डर है तो 3 साल के अंदर अंदर इसको समझ आ जाता है. ये साइन थोड़ा सा वेरी कर सकता है लेकिन ज़्यादातर बच्चे में या सभी बच्चे में दिखा जाता है कि सोशल कम्युनिकेशन के बहुत ही प्रॉब्लम है. What are these? The first one is fail to answer according to the question. If the question is very simple, then also they fail to answer the simple question. Second, if you are asking the child, what is your name? Sometimes he or she may not be able to answer her name. Thirdly, ये बच्चे cuddling करना और होल्ड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं. ज़्यादातर ये अकेले खेलना पसंद करते हैं. बच्चे जो मेक बिलीव प्ले करते हैं
जो बेगले पे होते हैं, जैसे कि आई एम एक्टिंग एज माई मदर, आई एम एक्टिंग एज माई फादर, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ माई टीचर, that these children are not able to play in this kind of thing. They does not speak. Late speech developmental stages are coming. Can't start conversation. They are not able to start conversation. In case of behavioral RRB, that is restricted repetitive behavior, are very common for them. ये इसका क्या बात है? ये दिखा जाता है जो रेपिटेटिव बिहेवियर करते हैं। अगर बच्चे मानो कि एक ही रास्ते से जाते हैं स्कूल, तो बच्चा हर टाइम जिद करेगा कि उसी रास्ते से हमको जाना है, कोई दूसरे रास्ते से हमको नहीं जाना है। I got a case where the baby is very much prone to have a pink soap. Every day he used to use a pink soap for his bathing. अब ये पिंक सोप के बदले में एक दिन मम्मी ने वाइट सोप दे दिया और बच्चे ने क्या किया, वो वाइट सोप लेने में इनकार करते हैं और बहुत रोने लगी। तो दिस काइंड ऑफ रेपिटेटिव बिहेवियर हम लोग देखते हैं और ये बिहेवियर से हम लोगों को पता चलता है कि बच्चे में शायद इसमें ऑटिज्म का साइन होगा। कभी कभी देखा जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसरी स्टिमुलेशन पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अभी ये सारे सिम्टम्स बोलने के बाद नाउ द पॉइंट इज दैट व्हेन टू गो टू आवर डॉक्टर, कब हम बच्चे को देख के डॉक्टर के पास जाएंगे। जब हम देखेंगे 6 महीना हो गया लेकिन बच्चा कोई खुशी का, हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन कर नहीं पा रही है या पा रहा है, 9 महीना हो गया, he is not mimicking the sound he is listening or she is listening, not able to produce that sound. अब 12 months हो गया, बच्चे is not babbling, he is not cooing, जेस्चर पॉइंट करना, वेव करना, कोई जेस्चर जो वो देख रहा है वो जेस्चर को कॉपी करना, ये जब 14th मंथ में नहीं होगा। 18th मंथ में जब बच्चे मेक बिलीव प्ले नहीं करेंगे, जब 24 मंथ हो गया बच्चे ने 2 वर्ड बोलना शुरू नहीं किया और देखा जाए तो बच्चा लैंग्वेज ठीक से बोल नहीं पा रहा है, कोई कन्वर्सेशन शुरू नहीं कर पा रहा है, तभी हमको बच्चे को लेके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब डॉक्टर कौन सा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, क्योंकि उसको देखना है, उसको चेक करनी है कि उसके ऑटिज़म है कि ना। लेकिन ये ऑटिज़म के है या नहीं, इसमें थोड़ा सा कभी कभी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हेन द चाइल्ड इज़ हैविंग ऑटिज़म और अदर काइंड ऑफ डिसऑर्डर, दैट इज़ childhood onset of schizophrenia, hearing impairment, or something in language impairment the baby is having. So there is a differential diagnostic criteria is very important with schizophrenia, with childhood onset, then congenital deafness, or it is very near also AMR. तो ये देख के हमको बच्चे को ले जाना पड़ेगा और ये वाला देखना पड़ेगा। अब बच्चे के मम्मी पापा को थोड़ा बहुत ये नॉलेज होना चाहिए जो कौन सा टेस्ट मेरे बच्चे को करेंगे डॉक्टर कार्ड्स देगा, CARS, कार्ड्स इज चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। इसके साथ उसका फिजियोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, उसका इमेजिंग करेंगे, ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू लेंगे, ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल करेंगे। ये सब करके डॉक्टर को पता चलेगा कि बच्चे में ऑटिज्म है या नहीं। अभी इस विषय में हमने जो बोला
उसके बाद का जो आएगा वो होगा काउंसलिंग पोर्शन क्या होगा, कैसे इसी तरीके के बच्चे को हम लाइफ स्किल ट्रेनिंग करेंगे, बच्चे के मम्मी पापा की किस तरीका का थेरेपी होगा या किस तरीके का दवाई लगेगा उनके लिए। धन्यवाद सुनने के लिए। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। We have heard what is autism and how to detect autism from Mrs. Boishaki Bhattacharya, and in the next video we will discuss about the treatment and diagnosis of autism. So my request is that you first hear this video, then you go to the part 2. Thank you.